वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरां दी बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी दी इलाही अमृतमयी बाणी दा कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनियां पासों आप जी ने श्रवण कीता है। गुरु दर ते जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न दा सांझ पाउण दा निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु जी रहमत करदिआं समझाउंदे ने कि मनुख दे कोल जानकारियां बहुत ने पर ज्ञान नहीं है। जानकारी सहजे हासिल हो जाती है, ते ये जानकारी सानू आले दुआले तो इधरों उधरों संसार विचों किताबां विचों मिल जाती है, पर ज्ञान इधरों उधरों नहीं मिलता। ज्ञान किताबां विचों नहीं मिलता। ज्ञान इस तरह सहजे ही नहीं मिलता। असीं जिसनूं ज्ञान समझ लैंदे आ वो ज्ञान हुंदा ही नहीं। वो तो सिर्फ जानकारी है। जिवें असीं स्कूलां विच पढ़िआ, साडे बच्चे स्कूलों विच पढ़ रहे ने, की पढ़ते ने? CAT कैट, कैट जानी बिल्ली। वो ये कुछ पढ़ रहे ने। तो बच्चे दे सामने तस्वीर बना दी जाती है बिल्ली दी। CAT कैट, कैट जानी बिल्ली। वो C अखर तो बिल्ली सीख लेंदा है कि कैट मतलब बिल्ली। ते वो इस गल नूं जान लेंदा है कि उसनूं ज्ञान हो गया। असीं सब ने ऐसा ही कीता है। असीं सब इसनूं ज्ञान ही समझते हैं कि ये ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक जानकारी है कि इस तस्वीर वाले जानवर नूं बिल्ली कहंदे ने जां हाथी कहंदे ने जां शेर कहंदे ने। बस ये सिर्फ जानकारी है, ज्ञान नहीं है। इसलिए जो कुछ भी असी सीखते हाँ, इधरों उधरों देखते हाँ, जानते हाँ, समझते हाँ, वो सिर्फ ते सिर्फ जानकारियां ही ने। इस तो बढ़ के होर कुछ भी नहीं है। असी किताबां विचों बहुत कुछ जाने, स्कूलों कॉलेजां विचों बहुत कुछ जाने, अपने आले दुआले विच विचर के बहुत कुछ जानिया, पर इस गल नूं विचारो कि इन्हां सारियां चीज़ां विच, इन्हां सारियां जानकारियां विच कुछ ऐसा है जिहड़ा अपना होवे, जिहड़ा किसी किताब विचों ना आया होवे, जिहड़ा किसी बंदे वल्लों ना दिता गया होवे,
ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ। ਆਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ हे ਗਿਆਨੀ, ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਐਸਾ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ CAT ਕੈਟ, ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ, ਇਹ ਗਵਈਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੀਤ ਯਾਦ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, B ਫॉर ਬॉल, C ਫॉर कैट, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਕੇ, ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਕੋਈ MPhil ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਿਆਨ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਕਿਹਦਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
कि माया का कोई लाभ नहीं। हुण जो सानू पता है वो सिर्फ जानकारी है, वो साडे अनुभव का हिस्सा नहीं बनया। ज्ञानी नू कदे लोभ नहीं हुंदा, कदे लालच नहीं हुंदा। हाँ, अज्ञानी नू लालच हुंदा है, लोभ हुंदा है। इसलिए अज्ञानी बंदा वो अक्सर डोल जाता है। ते जिहड़े सो कॉल्ड ज्ञानी हुंदे ने, दिखावे दे ज्ञानी, झूठे ज्ञानी, वो माया दे उत्ते अक्सर डोल जाते हैं। जिथों वध माया मिले उत्थे नूं तुर जाते हैं, जिथों ज़्यादा पैसे मिलण उत्थे चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म का प्रचार करने वाले लोग ने कि वो अचानक मना कर देंगे ने कि असीं नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि दूसरी थां तो वध पैसे मिल गए। ऐसा अक्सर हो जाता है। सतगुरु कहते इनू ज्ञानी नहीं कह सकते। ज्ञानी मतलब जिन्हें निर्वाण पद नू पा लिया। सतगुरु कहते ऐसा विचार करो, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाइए पद निर्वाणी। निर्वाण पद मिल जावे, वासना तो मुक्त निर्वाण पद, कि जिथे मन दे उत्ते वासना हावी नहीं हुंदी। लोभ मन नू ग्रसदा ही नहीं, रूप दा वासना दा मन उत्ते असर ही नहीं हुंदा। चमक दमक मन नू अपने तरफ नू खिंचदी नहीं, बस उसनू बंदा वेखदा है, उहदा आनंद माणदा है, पर उहदे विच गलतान नहीं हुंदा, उहदे विच अन्ना नहीं हुंदा। लोग माया विच अन्ने हो जांदे ने, लोग भुल ही जांदे ने बाकी सब माया दे विच। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे भाई आस पास बिखुआ के कुंटा, आले दुआले जहर दे चश्मे। बिखुआ के कुंड, बिख दे कुंड, बिख दे कुंड चश्मे, आले दुआले जहर दे कुंड, बीच अमृत है भाई रे, ते विचकार है अमृत। विचकार अमृत। आले दुआले जहर है पर उस दे अंदर अमृत छिपया हुआ है। ये शरीर ये बिनस जान वाला, खत्म हो जाने वाला है। अज पढ़ के पता नहीं कदों खत्म हो जाए, पर इस शरीर दे अंदर कुछ ऐसा छिपया जिहड़ा अमर है, जिहड़ा कदे खत्म नहीं हुंदा। हर शै दे अंदर ये चीज़ मौजूद है, जो तुहाडे अंदर है, जो मेरे अंदर है, जो पशुओं दे अंदर है, जो पंछियां अंदर है, जो पेड़ पौधों अंदर है। दरख्त मिट जाता है, एक दिन स्वाह हो जाता है, साडा शरीर भी एक दिन स्वाह हो जाता है, पशु पंछी भी एक दिन मिट जाते हैं, पर साडे सब दे अंदर जो वो चीज़ मौजूद है वो कदे नहीं मिटती, जिहदे करके असीं जिउंदे हां, जिहदे करके असीं तुरे फिरदे हां, वो कदे नहीं मिटदी। उस चीज़ नूं जानना उही अमृत है, उही अमर है। आले दुआले तो जहर ही है। सतगुरु कहते आस पास बिखुआ के कुंटा, साडे आले दुआले जहर ही तो बिखरी हुई है। असीं रूप देख के मोहे जाते हैं, असीं माया देख के लोभी हो जाते हैं, रुतबा देख के लोभ सानू ग्रस लैंदा है, माया सानू गलतान कर लैंदी, रूप सानू किवें प्रभावित करदा है। निक्की निक्की गल तो असीं आकर्षित हो जाते हैं, निक्कियां निक्कियां गल्लां तो असीं आकर्षित हो जाते हैं। कोई बंदा सानू जरा जिहा मान दे जाए असीं हंकारी हो जाते हैं, कोई बंदा जरा जी साडी इंसल्ट करदा है जां जरा जी कुछ साडी शान दे खिलाफ बोलदा है तो सानू क्रोध आ जाता है। निक्की जी गल, मामूली जी,
कोई बहुती नहीं, सिर्फ इन्नी क गल ते क्रोध आ जाता है कि तुहाडी पग दे उत्ते जरा जिहा दाग लगा है, ये दस्सण वाले बंदे दे उत्ते क्रोध आ जाता है। जां इन्ना कहण वाले ते कि तुहाडे कपड़े अज थोड़े ठीक नहीं लग रहे, इन्नी क गल कहण वाले बंदे ते क्रोध आ जाता है। मामूली जी गल है। सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे बंदा किवें इस जहर दे विच गलतान हो जाता है। आस पास वेखो आके कुंटा, साडे आले दुआले जहर ही तो है जिहदे विच असीं गलतान रहने आ, क्योंकि जहर सानू प्रभावित करदी है। जो चीज़ साडे आले दुआले ज़्यादा होवे, साडा ध्यान उहदे ते जांदा है। साडा ध्यान अमृत ते नहीं जांदा, साडा ध्यान जहर ते जांदा है, क्योंकि उहदे विच आकर्षण है। चंगी चीज़ ते साडा ध्यान नहीं जांदा, मंदी चीज़ ते साडा ध्यान जांदा है। कोई बंदा तुहानू कहे कि फलाना आदमी बहुत भैड़ा है, चोर है, रिश्वतखोरी करदा है, तुसीं एक सैकंड नहीं लाओगे, उहदी गल ते यकीन कर लोगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना है ही ऐसा। क्योंकि अज दे समय विच ईमानदार आदमी कित्थे हुंदा है? असीं एक पल दी देरी नहीं लाउंदे, असीं झटपट यकीन कर लैंदे आ कि हाँ ऐसा ही है। ते जे कोई तुहानू कहे कि वह फलाना आदमी बड़ा वधिया आदमी है, बड़ा नेक है, बड़ा धर्मी है, असीं इहदे ते विचार करदे ना ना अज दे समय विच भले आदमी कित्थे हुंदे, असीं यकीन नहीं करते। असीं गलत चीज़ के उत्ते फौरन यकीन करते हैं, चंगी चीज़ के उत्ते सानू यकीन नहीं आता, क्योंकि साडा माहौल ही ऐसा बनया होया, साडा मन ही ऐसा बन चुका है। असीं शुरू तो ही गलत चीज़ां ही देखते रहे हैं, माड़े बंदियां नाल ही वाह पैंदा रहा, जां इंज कह लीए कि साडे अंदर खुद औगण सन, माड़ापन सी, इस करके असीं माड़ा कुछ ही देखिया सुनिया विचारिया, इस करके चंगे दे उत्ते हुण यकीन जिहा नहीं रहा कि चंगा भी हो सकता है, कोई भला आदमी भी हो सकता है, कोई नेक भी हो सकता है। हुण ऐसा कोई लगता ही नहीं, क्योंकि औगण ही देखे ने असीं। सतगुरु कहंदे आले दुआले जहर है, औगण ही है, इस करके बंदे नूं अमृत कित्थे दिसदा है? अमृत भी है, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है पाई रे। सतगुरु कहंदे विच अमृत है, उहदे विच अमृत छिपिया होया है। इसलिए अमृत नाल जुड़ना, जहर नाल नहीं। जहर नाल तां जुड़े हुए ही आ, की लाभ होया हुण तक? काम नाल, वासना नाल तां जुड़े हुए आ, जदों दे जवान होए आ उदों तो वासना नाल ही जुड़े आ, कुछ हासिल होया? क्रोध नाल बहुत लमेरे जुड़े आ, कि क्रोध विचों कुछ हासिल होया? किन्नी बारी क्रोध कर करके देखिया, कुछ मिले? कुछ भी नहीं। लोभ विचों, मोह विचों, आसा तृष्णा विचों की हासिल होया? कुछ भी नहीं। सतगुरु कहते जरा जा हुण इहदे वल्लों ध्यान हटा के अमृत वल वेख, जरा दुख वल्लों ध्यान हटा के सुख वल देख। बंदे दे जीवन में दुख तो बिना की है? कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी उन्हें दुख ही देखिया। बंदे दी हालत ऐसी है कि जे इसनूं लोड़ तो वध सुख मिल जाए ना, अचानक सुख मिल जाए, तो बंदा मर जाता है। दुख नाल लोग नहीं मरते, लोग सुख नाल मर जाते हैं। सदमा लग जाता है, अचानक लॉटरी लग गई 2 करोड़ की, बंदे की मौत हो गई। इन्ना सुख बर्दाश्त नहीं ना हुंदा, क्योंकि दुख दे असीं यूज़ टू आ, दुख दे असीं आदी आ, असीं सुख दे आदी थोड़ी ना। सुख की आदत नहीं है सानू, दुख की आदत है। इसलिए असीं लोग ज़्यादातर दुखां वल नूं ही वेखदे रहने आ। किसी नूं जरा जा पुछो, वो अपने दुखां की किताब खोल के बह जाएगा तुहाडे सामने। हर बंदा दुख नाल भरिया पिया।
सतगुरु कहते जरा जिहा दुख तो अपना ध्यान हटा, क्योंकि सुख इत्थे है, दुख दे विच ही सुख छिपिया होया। तू जरा ध्यान नाल वेख, आस पास विखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। सतगुरु कहते विच ही है, इत्थे ही मौजूद है। इसलिए इधर उधर वेखण की जरूरत नहीं है, दूसरिਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं कि दूसरिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ सुख है। दूसरे ਦਾ सुख, दूसरे ਕੋਲ सुख ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। दूसरे ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ BMW ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ। दूसरे ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਜਾਓ, पर सानू उहदा कोई सुख नहीं है। दूसरे दी चीज़ का सानू की सुख, सानू सिर्फ उस चीज़ का सुख है जिहड़ी चीज़ साडे घर है, सानू उहदा ही सुख है। इसलिए उहदा ही सुख मानना। लोग दुखी इसे करके ने क्योंकि वो अपने घर दीयां चीज़ां नूं देखण दी बजाय वो दूसरिਆਂ दे घरां दीयां चीज़ां नूं तक्कण लगे हुए ने। इसलिए तो सतगुरु ने कहा पर घर जो ही नीच सनात, कि पराए घर वाल देखदा रहिंदा है नीच आदमी। इस करके अपने घर दीयां चीज़ां दे सुख मानण तो वांझा रह जांदा है। सतगुरु कहंदे विच अमृत है पाई रे, इत्थे अमृत मौजूद है, इत्थे सुख मौजूद है जिहड़ा आत्मिक जीवन देण वाला है। इसलिए इस नूं वेखना, होर पासे वेखण दी जरूरत नहीं। सतगुरु समझाउंदे एक बगीचा पेड़ घन करया, उस वाहिगुरु ने यह संसार रूपी बगीचा उस परमेश्वर ने सिर दिया। यह संसार बहुत सुंदर है, बड़ा प्यारा बगीचा। ते इस बगीचे अंदर पेड़ घन, घन मतलब घने, बहुत सारे उसने पेड़ इस संसार रूपी बगीचे विच पैदा कीते ने। तुसीं कदे बैठदे हो किसी बगीचे विच, किसी पार्क विच, उत्थे बहुत तरह के फुल्लां दे बूटे ने, होर बहुत सारे बूटे ने, वख-वख किस्मां दे, वख-वख भांतां दे। असीं लोग पार्कां विच जांदे तां जरूर हाँ, लोग जांदे ने वेखना रोज़ गार्डन, लोग बैठते ने पार्कां विच, पर की करते हैं? फुल्लां नूं वेखण कौन जांदा है? फुल्लां नाल उत्थे कोई खुशबू वेखण नूं, उह खुशबू नूं जानण नूं, मानण नूं, फुੱਲ नूं वेखण नूं, उहदी कोमलता नूं, उहदी सॉफ्टनेस नूं, उहदी खूबसूरती नूं वेखण जानण कौन जांदा है? लोग जाते हैं अपने मित्र सज्जन नाल, लोग जाते हैं उत्थे सवेरे शाम सैर करन, लोग जाते हैं बस घूम फिर के 2-4 चक्कर कढ़ के मुड़ आउंदे ने, जाते हैं अपने किसी भैन भाई नाल उत्थे बह के गल्लां बातां करके मुड़ आउंदे ने। फुल्लां नूं कौन देखदा है? उहदी खुशबू नूं कौन जानदा है? कोई भी नहीं। लोग मुड़ आउंदे ने खाली। जाते ने लोग पिकनिक मनाउण, घरों रोटी पानी बना के लै जाते हैं, अपने बच्चों नाल उत्थे बह के खा के आ जाते हैं। अक्सर मैं वेख्या कई दफ़ा ऐसा। की करन गए? कुछ भी नहीं। उन्होंने पूछो कि की वेख के आए, वो कहते जी फुੱਲ वेखे। फुੱਲ उन्होंने एक भी नहीं वेख्या। हाँ तस्वीरां जरूर लईआं फुੱਲਾਂ दे नाल। उसनूं की कहंदे ने कि ये यादगारी तस्वीर। अपने किसी मित्र नाल गए सन, तस्वीरां ने अपने घर में जड़ा रखियां, अपने मोबाइल फोन में भर लियां तस्वीरां, पर माणिया की? माणिया कुछ भी नहीं। उत्थे जो ठंडी हवा वग रही सी उहनूं इंजॉय नहीं किया। उत्थे जो फुੱਲਾਂ की खूबसूरती सी उसनूं अखां ने इंजॉय नहीं किया। अखां होर ही कुछ तकदियां रहियां। उत्थे बैठना सी, शांत होना सी, उत्थे थोड़ा गल्लां तो मुक्त होना सी, पर उत्थे गल्लां बातां विच उलझे रहे। इसलिए प्राप्ति की हुई? कुछ भी नहीं।
बस ऐसा ही जानो, इस संसार दे विच, ये संसार जिहड़ा बहुत सुंदर बगीचा है, इस बगीचे दे विच असीं सब इसे तरह कम्मां धंदियां विच, इसे तरह गल्लां बातां विच उलझे होए हां। इस संसार दी खूबसूरती नूं वेख ही नहीं रहे, असीं जान ही नहीं रहे। जिहड़ा फुल सानूं सोहना लगदा है असीं वो फुल तोड़ लैंदे हां। ऐसा ही है ना, जिहड़ा सानूं प्यारा लगदा है असीं तोड़ लैंदे हां ते उहनूं तोड़ के असीं अपने हत्थीं खत्म कर दिंदे हां। इसलिए लिखना पैंदा है कि फुल तोड़ना मना है। संसार दे विच भी ऐसा ही है, जिहड़ा सानूं प्यारा लगदा है असीं उसे नूं टॉर्चर करन लग जांदे हां, उसे नूं तंग करन लग जांदे हां, परेशान करन लग जांदे हां कि मेरी मर्जी मुताबिक चलना है जिवें चलना। पत्नी कहंदी मेरी मर्जी मुताबिक चलना है, पति कहंदा मेरी मर्जी नाल चलना है। बच्चे माँ बाप नूं कहंदे ने जिवें असीं चाहुंदे उवें करो, माँ बाप कहंदे ने जिवें असीं चाहुंदे हां बच्चो तुसीं उवें करो। अपनी मर्जी मुताबिक तोड़ना चाहुंदे ने, इसलिए फुल्लां नूं तोड़ दिंदे ने, उन्हां नूं कट वड्ढ दिंदे ने। इस करके वो फुੱਲ पूरी तरह खिड़ ही नहीं पाते, मुरझा जाते हैं। साडा जीवन पूरी तरह खिड़दा ही नहीं, खिड़ाओ नहीं आता साडे जीवन विच, क्योंकि असीं खिड़न दिता ही नहीं। सतगुरु कहते संसार उस वाहिगुरू का सिरजिया होया रचिया होया बगीचा है। इस बगीचे विच अनेकां पेड़ अनेकां उसने जीव पैदा किए हैं। एक बगीचा पेड़ कन करया, अमृत नाम तहां मैं फड़िया। सतगुरु कहते इत्थे अमृत दा फल लगेगा। सब दे अंदर संभावना है, जिन्ने भी इत्थे जीव ने। हर जिहड़ा पेड़ है उस हर पेड़ नूं कोई ना कोई फल लगदा ही है, चाहे कैसा भी होवे, उहदे अंदर संभावना है। सतगुरु कहते हर जीव दे अंदर, हर मनुख दे अंदर अमृत दा फल लगेगा, इहदी संभावना है सब दे अंदर। असीं कुछ कुछ लोकां नूं देखदे हां जिन्हां नूं फल लगा, कबीर साहब, रविदास जी, नामदेव जी, ऐसियां रब्बी रूहां जिहड़े गुरसिख होए, वो गुरु साहब भाई लैणे वर्गे, गुरु अमरदास, असीं देखदे हां उन्हां नूं फल लगा अमृत दा फल। असीं सोचदे हां कि वो तां जी वडभागी सन, उन्हां नूं लगा फल। ख्याल रखना, जिहड़ी चीज़ किसी एक आदमी नूं हासिल हो गई वो पूरी धरती दे मनुखां नूं हासिल हो सकती है, उहदी संभावना है, उहदी संभावना है। जो किसी एक नूं उपलब्ध हो गया वो सब नूं उपलब्ध हो सकता है, बस उहदे लई मशक्कत करनी पवेगी थोड़ी जी। इसलिए उन्हां नूं अमृत हासिल हो गया तां सानू भी हो सकता है। इस करके सतगुरु कहते अमृत नाम तहां मैं फड़िया। इत्थे वाहिगुरू दा नाम रूपी अमृत फड़िया। इस करके ऐसा करो विचार ज्ञानी। सतगुरु कहते हे ज्ञानी ऐसा विचार कर। असीं बहुत विचारते हैं ना, असीं अपने आप को कहने बड़े सियाणे हैं, बड़े समझदार हैं। सतगुरु कहते फिर आ विचार कर, जाते पाई है पद निर्वाणी, जिस राही निर्वाण पद मिल जावे, जिस नाल वासनावां तो मुक्त हो जाइए, ऐसा पद, ऐसा रुतबा, ऐसी दात, जाते पाई है पद निर्वाणी। आस पास बिखुआ के कुंटा, आले दुआले बिख ने, बीच अमृत है भाई रे। जिमें फुੱਲ ਦੇ आले दुआले कंडे हो सकते हैं, ਉਹਦੇ दुआले कंडे हो सकते हैं। जिमें कमल का फुੱਲ है, ਉਹਦੇ आले दुआले चिक्कड़ है, ਉਹਦੇ आले दुआले गंदा पानी है, पर उस गंदे पानी दे विच वो कमल मौजूद है। वो दस रहा है कि ये गंदा पानी मेरा कुछ नहीं कर सकिया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकिया, मैं फिर भी खिड़िया होया, इंज जीवन जीवीदा है। वो दसदा है सानू। गुलाब का फुੱਲ दसदा है कि मेरे नाल बेशक कंडे ने, पर वेखो कंडियां नूं वेख के मैं खिड़ना नहीं छड्डिया,
मैं खिड़ रहा। सतगुरु कहते इंज आले दुआले जहर है, मौत है, पर विचकार जीवन, बीच अमृत है भाई रे, विचकार अमृत है रहाओ। सिंचन हारे एक है माली। सतगुरु कहते सिंचनहार, इस संसार दे विच जो ये जीव ने, जो पेड़ पौधे ने, इन्हां नूं सिंचण वाला इक्को माली है, वो परमेश्वर। ते उस माली ने इस संसार दे विच बहुत तरह के जीव पैदा कीते ने। तुसी कदे निरपक्ष हो के तुसी संसार दे विच मनुखां नूं वेखना, भारत विच वसन वाले मनुख कैसे ने, नेपाल विच वसन वाले, भारत दे विच ही बहुत तरह के लोग तुहानूं मिल जाणगे। जिमें जिमें तुसी पूरे देश विच विचरोगे ना, तो वखरे वखरे किस्म के लोग, वखरी वखरी बोली बोलन वाले, वखरा वखरा खाना खाण वाले, वखरा वखरा पहरावा पहनने वाले, बड़े तरह तरह के लोग। फिर जिमें तुसी आसाम वाले पासे नूं जाओगे, जिमें सिक्किम वाले पासे नूं जाओगे, उत्थों के लोगों के रूप रंग विच भी तुहानूं फर्क नज़र आएगा। उन्हां दीयां अखां, उन्हां दा चेहरा, उन्हां दा कद थोड़ा वखरा। जिमें तुसी चाइना वाल नूं जाओगे, उन्हां दे लोकां दीयां अखां छोटियां, उन्हां दे कद भी छोटे। जापान वाल नूं जाओगे, उधर उन्हां दे लोकां दा रूप रंग कुछ वखरा। अफ्रीका वाल नूं उन्हां दा रंग काला, उन्हां दे रंग ढंग वखरे। फिर यूरोप वाल नूं आ जाओ, इत्थों दे लोकां दा रंग गोरा। तो यूरोप थोड़ा अमेरिका वाले पासे नूं चले जाओगे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्थों दे लोकां दा रंग गोरा, पर थोड़ा थोड़ा लाल जिहा रंग उन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕੇਗਾ। जिमें तुसी अरब वाल नूं आवोगे, अरब लोकां दे रूप रंग विच थोड़ा फर्क नज़र आएगा। सऊदी अरब, कुवैत, इधरले लोकां विच। इसे तरह पूरे संसार दे विच ऐसा ही है। सब वक्खो वखरे ने। वाहिगुरू ने, उस परमेश्वर माली ने वख वख भांतां, वख वख किस्मां दे जीव पैदा करे ने। उहदी यही भिन्नता है। सदियां तो लोग ये यतन करते रहे कि सब नूं एक कर लीए असीं, पर ऐसा कदे नहीं हो सकेगा। इस धरती ते बड़े लोग ऐसे आए, इस भारत विच मुसलमान आए, उन्हां दा राज आया, उन्होंने कोशिश की कि सारिਆਂ नूं एक कर दईए, मुसलमान बना दईए, पर नहीं हो सकिया। उन्होंने तो बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज़ों ने भी यही सोचा कि पूरे देश विच ईसाई मत ले आईए, पर वो नहीं कर सके। हुण भी ऐसा ही हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना लीए, कोशिश हो रही है, दावा किया जा रहा है कि 2030 तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत। ये कदे भी नहीं हो सकता। कुदरत का नियम ही नहीं है। यह कुदरत का नियम ही नहीं है। कुदरत वख वख रंगां नाल ही सोभदी है, कदे हो ही नहीं सकता ऐसा। ऐसा करने वाले लोग मर खप गए, उन्हां दे नां थां मिट गए, पर ऐसा नहीं हो सकिया। लोग कदे भी नहीं इस गल नूं जान पाते। सतगुरु कहते उस परमेश्वर ने, वो सिंचनहार वो इक्को ही है, वो माली इक्को ही है। जिवें बगीचे नूं सांभण वाला, उहदी सांभ संभाल करने वाला माली इक्को ही है, पर उहदे विच वख वख भांतां किस्मां दे फुੱਲ बूटे लगे हुए ने। परमात्मा वो इक्को ही है माली, ਉਹੀ पानी दिंदा है, ਉਹੀ सांभ संभाल करदा है, ਉਹੀ सब कुछ करदा है। वख वख जीवां दी, वख वख पशुआं पंछियां दी, मनुखां दी ਉਹਦੀ कुदरत जिवें है वो उवें ही सोहणी है। इस करके सतगुरु कहंदे खबर करत है पात पत डाली। जिवें वो माली कल्ले कल्ले पत्ते दी खबर रखदा है, खबर करत है पात पत, पत्ते पत्ते दी, फुੱਲ फुੱਲ दी खबर हुंदी है। तुसीं माली नूं पुछ लो कि फलाना बूटा, वो तुहानूं दस देगा, ਉਹਦੇ बारे दस देगा।
ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖਬਰ ਕਰਤ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਆਣ ਜੜਾਈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤ ਜੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਨਿਫਲ ਨਾ ਕਾਈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਲ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਨਿਫਲ ਨਾ ਕਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਫਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨਾਮ ਜਿਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਤਿਨ ਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਪਾਰ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਸਾ ਦੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।